Okay, fine. So we'll start with next topic called control loops. Okay, so control loops are basically used for repetitive operations. Okay, मल्टीपल ऑपरेशंस करने के लिए, रिपीटेटिव ऑपरेशंस करने के लिए हम कंट्रोल लूप्स यूज करते हैं. सो syntax of control loops consist of three things. Okay, first thing is your initialization, second is your condition, third is your increment. Okay, so these are the syntax of loops: initialization, condition and increment. Okay, so we'll start with the first loop. There are three types of loops basically. First is your while loop. Okay, second is your for loop. Okay, and the third one is your nested loop. Okay, we'll start with the while loop first. So take an example. I declared one variable count equal to 0, then while count is less than 3 colon enter colon के नीचे we have to write next code, print this is my operation, oh sorry, this is my operation, welcome to MIT. Okay, and then here count equal to count plus 1. Okay, count equal to count plus 1. Okay, so you'll just like you'll ask like this is fine ki we are covering control loops, but what is the real time use case of this one? Okay, so real time use case of this one is you know ATM machine, right? तो अगर मुझे ATM मशीन के लिए कुछ क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं, सो आई यूज टू गो टू ATM में जाने के बाद आई यूज टू स्वाइप माई कार्ड. ओके, कार्ड स्वाइप करते हैं, देन कार्ड स्वाइप करने के बाद ओके सिस्टम विल आस्क फॉर पिन कोड. ठीक है, यहाँ पे हमें पिन कोड देना होता है, राइट? सो कंसिडर माई स्टैंडर्ड पिन कोड, आइडियल पिन कोड इज 1234. ओके, बट फर्स्ट टाइम इफ आई जस्ट गिव 1235, मैंने दिया फर्स्ट पिन कोड 1235. So what will show? So it will just pop up one message. Okay, your pin code is incorrect. Okay, please enter correct pin code. ठीक है, मेरा जो पिन कोड है इनकरेक्ट है, मुझे नए वाले पिन कोड, करेक्ट वाले पिन कोड के लिए एंटर करना है. ठीक है, फिर से वो सेम पेज पे लेके आएगा. तो मैंने दिया 1236. ओके, मैंने दिया न्यू पिन कोड इज 1236. फिर से मुझे सेम मैसेज मिलेगा, योर पिन कोड इज इनकरेक्ट. ओके, प्लीज एंटर योर करेक्ट पिन कोड. ओके, तो मैंने दिया 1236 दिया था, फिर से मुझे सेम मैसेज मिला. नेक्स्ट टाइम मैंने दिया 1237. ओके, तो इस टाइम मुझे मैसेज मिलेगा, योर पिन कोड इज इनकरेक्ट. ओके, एंड योर ATM इज ब्लॉक्ड फॉर 24 hours. करेक्ट? क्लियर है, राइट? तो यहाँ पे ये जो रिपीटेड ऑपरेशंस हो रहे, दीज आर बिकॉज ऑफ योर लूप्स. ओके, तो फर्स्ट टाइम आपने इनकरेक्ट पिन कोड दिया, फिर भी आपका ये प्रोसेस हो रहा है. सेकेंड टाइम आपने पिन कोड इनकरेक्ट दिया, फिर भी आपका प्रोसेस हो रहा है. थर्ड टाइम आपने पिन कोड इनकरेक्ट दिया, तो आपका ATM कार्ड ब्लॉक हुआ है फॉर 24 आवर्स. तो दिस इज रियल टाइम यूज केस ऑफ योर कंट्रोल लूप्स. समझ में आ रहा है? What is the real time use case of control loop? Hello? Yes, sir. Okay, getting right? Okay,
So let's talk about code. Okay, so initially I have one variable called count equal to 0. Okay, सबसे पहला है count equal to 0. Let's talk about output. Okay, so my count is equal to 0. हमने count variable को input दिया है 0. Then it will check for while loop. So this is my while loop declaration. While in the bracket count is less than 3, this is my condition. जैसे मैंने बोला था initialization count equal to 0, this is your initialization of variable. Then count is less than 3. Okay, 0 is less than 3, condition true है. Yes, this condition is satisfying. तो ये कोलन के अंदर जाएगा, I mean in the braces, curly braces. So print welcome to MIT. यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा welcome to MIT. Okay, then this count equal to count plus 1. Okay, तो यहाँ पे क्या है, this is your increment. ठीक है, सबसे पहला था initialization count equal to 0, while loop count is less than 3, this is my condition. Okay, and count equal to count plus 1, this is my increment. Okay, this should be decrement as well. Okay, so count equal to count plus 1, this is my increment. तो basically ये count equal to count plus 1 क्या होता है, count equal to count plus 1 is basically this is your old count value and this is your new count value. ठीक है, so my old count value, count की value क्या है, 0 है, correct. So this becomes 0 plus 1. Okay, this becomes 0 plus 1. So you'll get new variable, new count variable as 1. Okay, so count को value मिलेगी 1, correct. So initially count is 0, 0 is initially count is 0, 0 is less than 3. ये condition check हुई, condition satisfy हुई है, इसकी वजह से ये operation execute हो रहा है welcome to exponent. Okay, उसके बाद count equal to count plus 1. So basically count equal to count plus 1 is what, count की ये रहेगी new value and this is your old value of count. Okay, and plus 1. तो old value is what, old value is 0. ठीक है, तो 0 plus 1 counts become 1. तो अभी count equal to 1 हुआ है, so यहाँ पे आएगा count equal to 1. Okay, then it will check for again condition, count 1 is less than 3, 1 is less than 3 है, yeah, correct, condition is satisfying. Then operation execute होगा welcome to MIT. Okay, this is welcome to MIT. Okay, then again count equal to count plus 1. Okay, so अभी हमें count की new value चाहिए, तो count की old value is what, count की old value है 1, 1 plus 1, 1 plus 1, count becomes 2, output मिलेगा 2. Okay, then count हो गया आपका 2. Okay, then again it will check for condition, count is less than 3, 2 is less than 3, correct, condition satisfy हो रही है, yes, go to operation welcome to MIT. यहाँ पे operation execute होगा again. So new value of count निकालनी है, तो old value is 2. Okay, तो यहाँ पे होगा 2 plus 1 becomes 3. Okay, तो ये जाएगा हमारा count हो जाएगा, count becomes 3. Okay, 3 is less than 3, तो यहाँ पे हमारी condition false होगी, तो यहाँ पे आपका जो count variable it will exit to your loop. ओके, यहाँ से आपका ये जो काउंट वाला वेरिएबल है यहाँ से लूप से एग्जिट लेगा बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग. ओके, सो एज अ आउटपुट, ओके, एज अ आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वी आर गेटिंग 3 टाइम्स वेलकम टू MIT, 3 टाइम्स हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. गार्गी, मानसी, क्लियर है? Okay, so I'll recall again. So in doubt? Okay, so this count equal to 0. Okay, this is my initialization. So in a loop there are 3 syntaxes: initialization, condition and increment decrement. So while loop हम चेक करें, सबसे पहले while loop.
So count equal to 0 is my initialization, while count is less than 3, this is my condition. Okay, condition आ गई, this is my operation and this is my increment. Okay, count equal to count plus 1, this is my increment. Okay, यहाँ पे decrement भी कर सकते हैं through minus command. Okay, then in output, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन था काउंट इक्वल टू 0, कंडीशन चेक होगी, ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा एंड यू विल गेट न्यू वैल्यू ऑफ काउंट, बिकॉज ऑफ दिस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. सेम न्यू वैल्यू मिलने के बाद वो कंपैरिजन करेगा विद द 3, देन वेलकम टू MIT. देन अगेन यहाँ पे आपका न्यू काउंट का वेरिएबल, न्यू काउंट का आउटपुट मिलेगा 2. ओके, देन काउंट इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू मिली थी 2, सो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, अगेन वेलकम टू MIT. देन आपका काउंट वेरिएबल का जो इंक्रीमेंट होगा, काउंट बिकम्स 3, यहाँ पे काउंट बिकम्स 3 होगा, 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ से लूप हमारा एग्जिट लेगा. दिस इज फॉर लूप, सॉरी दिस इज व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन. ओके, सो similarly we have for loop. Okay, so take an example, we have one list. Okay, so I hope you all know list. L equal to square braces 1 comma 2 comma 3 comma 4. I have list of 1 2 3 4 records. Then for I in L colon. Okay, so this is my for loop declaration. Okay, सबसे पहले अभी ये हमने लिस्ट डिक्लेयर की है, तो इन दिस लिस्ट दिस फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन इज योर इनिशियलाइजेशन. ओके, this one is your initialization for I in L. Okay, so that means we have to pass all the values of L to I. Okay, what we have to do, we have to pass all the values of L to I. This is your condition. Okay, L equal to 1 is your increment, sorry, L equal to 1 is your initialization, L in I in L, this is your passing of values, list values to I variable. Then inside this colon, inside this braces, print welcome to MIT. This is my operation. Okay, तो सबसे पहले L equal to 1 is my input. So we'll discuss about output कैसे आएगा. सबसे पहले L की वैल्यू रहेगी 1. Okay, so this L becomes 1. L की first value रहेगी 1. So L will pass that value to I in a for loop. Okay, so I becomes 1. Okay, so L क्या करेगा, L वैल्यू पास करेगा I को, so I becomes 1. and then अगर L की सारी वैल्यूज I को मिल रही है, so that means this loop is satisfying, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है. जब तक L के पास वैल्यूज है और L सारी वैल्यूज I को पास कर रहा है, so for that ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा. So here I'll get output as a welcome to MIT. Okay, then L equal to 2. Okay, then similarly I becomes 2, operation execute होगा, will get output as a welcome to MIT. Same L equal to 3 pass होगा, for that I becomes 3, operation execute होगा, will get output as a welcome to MIT. Then L equal to 4, last value I equal to 4, will get output as a welcome to MIT. Okay, again. Okay, बट अभी यहाँ पे L के लिए नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो L कोई भी वैल्यू I के लिए पास नहीं करेगा, सो हियर दिस लूप एग्जिट्स. ओके, तो ये लूप यहाँ से बाहर आ जाएगा, वी वोंट गेट एनी आउटपुट फॉर नेक्स्ट वैल्यूज. ओके, तो जितनी वैल्यूज I के लिए L के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, उतनी वैल्यूज के लिए L वो वैल्यू I के लिए पास करेगा और उतनी वैल्यूज के लिए यहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, वेलकम टू MIT. क्लियर है टू ऑल? Any doubt? Yes, sir. Clear है, right? Okay, okay, fine. So this is our first part as a list. Okay, passing of list elements to loop, for loop. Second is a
B tuple. Okay, so similarly, like list, we have tuple, as you know. Okay, it just we're declaring tuple with round braces. Okay, तो जैसे आपके लिस्ट के लिए एग्जीक्यूशन हुआ था वैसे एग्जीक्यूशन टपल के लिए भी होगा। टपल के लिए भी जितने एलिमेंट्स है उतने सारे एलिमेंट्स के लिए एल वैल्यू पास करेगा आई को। ओके, और उतने सारे वैल्यूज के लिए आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा वेलकम टू एम आई टी। सो यहाँ पे एल के लिए 4 वैल्यूज, तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वेलकम टू एम आई टी 4 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट इज अ सेट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, लाइक लास्ट टाइम जो हमने ऑपरेशन किया था इन डेटा टाइप डिक्लेरेशन, तो वी कांट एक्सेस सेट एलिमेंट थ्रू दैट इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, देन यू वर फेसिंग सम इश्यूज कि वहाँ पे सेट की जो एलिमेंट्स है वो एक्सेस नहीं हो रहे थे। सो दैट इट्स बिकॉज कि वी कांट एक्सेस सेट एलिमेंट्स थ्रू इंडेक्सिंग, we can access set elements through loops only, and that is for loop only. So take an example, I declared one set, let's say mid. Okay, then for I in f colon print I. Okay, so I declare one set called MIT. MIT is my data, this is my set function, and I'm just passing record of f element to I. Okay, and I'm just printing data of I variable. Okay, so what will be the output? Output is like, the first of all, f is having three characters. F is having three characters which are M, I and T. ओके, तो सबसे पहले F क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट M एलिमेंट पास करेगा टू I वेरिएबल। ओके, दिस I इन F, इट मीन्स यू आर पासिंग एलिमेंट्स ऑफ F टू I। ओके, तो सबसे पहला एलिमेंट है M, M जाएगा I के लिए। ओके, इट विल प्रिंट I, और जो भी आपका ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट होगा, द फर्स्ट आउटपुट विल बी M। ओके, then the second element is I, so I element F पास करेगा to I वेरिएबल, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा I मीन्स इज दिस वन। ओके, तो जो हमने पास किया F वेरिएबल से I को, तो वो एलिमेंट प्रिंट होगा विच इज I। ओके, देन F क्या करेगा, थर्ड एलिमेंट T पास करेगा I के लिए, तो प्रिंट होगा I के अंदर क्या है आपका T वेरिएबल है। ओके, सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग आउटपुट एज अ MIT। ओके, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू MIT, ओके, if I write welcome to MIT, so what will be the output? So we'll get output as a welcome to MIT 3 times। ओके, ये 3 times हमें आउटपुट मिलेगा। गेटिंग राइट द सेट एलिमेंट्स? ओके, क्लियर टू ऑल? Okay, I am not getting any input from you. So am I audible? Ninat, Gati? Yes, sir. Okay, okay, fine. So the next one is a dictionary. Okay, so take an example. I have one dictionary D equal to curly braces 1 colon high, comma 2 colon how. Okay, I declared one dictionary. Then my loop for I in a D. Okay, print I. Okay, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन विल बी सेम ओनली, द वी आर पासिंग वैल्यूज ऑफ डी टू आई। ओके, वी आर पासिंग वैल्यूज ऑफ डी टू आई, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन सेम ही रहेगा जस्ट लाइक योर डिक्शनरी। सो इट विल पास फर्स्ट एलिमेंट, यू विल गेट आउटपुट एज अ 1 colon हाई, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज 2 colon हाउ, तो ये आउटपुट में मिलेगा। आउटपुट विल बी दिस ओनली, 1 colon high and 2 colon how. Okay, but instead of passing D, if I write
इफ आई डिक्लेयर डी ऑफ वन, मुझे अभी स्पेसिफिकली हाई को ही रन करना है, सो इफ आई राइट डी ऑफ वन, सो output will be 1 colon high, only high. Yeah, so we are specifically accessing elements of key 1. Okay, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा only high. Okay, the output of this program, and the output of this program is 1 colon high comma 2 colon how. Okay, so this is passing of dictionary elements to for loop, like your list, like your tuple, like your set elements. Okay, and the last one is the third one, nested loop. Okay, so take an example. Nested loop means uh, we can declare one loop under second loop. Okay, so take an example. I have two list x with 1 comma 2, then I have list y equal to 1 comma 2. Okay, then if I declare that for I in x colon enter, this is my second loop. Declaration of two loops, okay, is basically a nested loop. Colon j print I comma j. Okay, so I declared one for loop. This is my first for loop, और उस for loop के अंदर अगर यहाँ पे condition satisfy होती है for I in x, तो उसके अंदर I declared one for j in a y, second loop, और उसके अंदर this is my operation. You can do anything. I just write a print. I just did print of I comma j. तो इसका आउटपुट एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा? ओके, सो इनिशियली एज वी नो x इज हैविंग टू वेरिएबल्स, वन टू वैल्यूज 1 कॉमा 2, तो x क्या करेगा? सबसे पहले वैल्यू पास करेगा x इक्वल टू 1 टू i. ओके, i के लिए फर्स्ट वैल्यू पास करेगा तो i बिकम्स 1. ओके, x ने वैल्यू पास की है i को, तो i बिकम्स 1. सो फॉर दिस लूप वेयर like our condition is satisfying, x की वैल्यू i के लिए जा रही, condition is satisfying. The second is for j in a y. okay, तो y क्या करेगा? ये जो फर्स्ट वैल्यू वो पास करेगा j के लिए, तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 1. ओके, देन सेम j इक्वल टू 1, क्योंकि y ने वैल्यू पास की है j के लिए, देन यहाँ पे होगा प्रिंट i कॉमा j. सो हियर विल गेट आउटपुट एज अ प्रिंट i कॉमा j, मतलब 1 कॉमा 1. ओके, अगेन बट यहाँ पे y के लिए सेकेंड वैल्यू भी है, तो y क्या करेगा? सेकेंड वैल्यू भी पास करेगा j के लिए. ओके, सो इन दैट केस x बिकम सेम, i बिकम सेम, y बिकम्स 2 एंड j बिकम्स 2, क्योंकि y के लिए दो वैल्यूज है. तो हियर आई विल गेट आउटपुट एज अ 1 कॉमा 2. ओके, तो यहाँ पे अभी y की वैल्यूज खत्म हो गई 1 एंड 2, देन इट विल रीच आउट टू x. ये लूप एग्जिट ले लेगा क्योंकि y के पास वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे x ने फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी पास कर दी थी, तो सेकेंड वैल्यू पास होगी x इक्वल टू 2 टू i. तो x बिकम्स 2, एंड सिमिलरली i बिकम्स 2, क्योंकि x वैल्यू पास करता है i को. अगेन यहाँ पे आने के बाद y के पास कितनी है? दो वैल्यूज है, तो y क्या करेगा? फर्स्ट वैल्यू पास करेगा, y पास करेगा y इक्वल टू 1. ओके, देन j बिकम्स 1. ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा 2 कॉमा 1. ओके, बट y के लिए सेकेंड वैल्यू भी है, तो सेकेंड वैल्यू y क्या करेगा? पास करेगा j को. ओके, तो यहाँ पे आएगा x बिकम्स कांस्टेंट, i बिकम्स कांस्टेंट, y इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 2 कॉमा 2. क्लियर है विद दिस? एनी डाउट्स? कुछ डाउट है? No, sir. Okay, clear? No, sir. Okay, so instead of comma if I write star over here, okay, so ये क्या होगा? The output will be this. Okay, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा दिस इज
1, this is 2, this is 2, this is 4. Okay, then we can print table. Okay, let me just show you. Value of x equal to 2, 3 and the y equal to, यहाँ पे हम 2 और 3 का टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, एंड 10. ओके, तो सबसे पहले देखो, इफ वी रन दिस क्रमान, ओके, अगर मैंने ये एग्जीक्यूशन किया, इस कोड को एग्जीक्यूट किया, तो वो क्या करेगा, 2 4 देन 6 8 10 12 14 16 18 20, ये एक टेबल प्रिंट करेगा. एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट 3 का टेबल, 3 6 9 12 15 18 21 25, okay, 28 and 30. okay, so operation will be like, यहाँ पे x की फर्स्ट वैल्यू पास होगी. ओके, x इक्वल टू 2, ये फर्स्ट वैल्यू पास होगी i के लिए. ओके, उसके बाद ये y क्या करेगा, y की हर एक वैल्यू j के लिए पास होगी. ठीक है, तो 2 कांस्टेंट रहेगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा विद ऑल दिस वैल्यू. तो यहाँ पे आपको 2 का टेबल मिल जाएगा. देन सेकेंड वैल्यू जो है x की, वो है 3. तो जब x 3 वैल्यू पास करेगा i को, तो वहाँ पे भी y क्या करेगा, हर एक वैल्यू को पास करेगा, वहाँ पे भी आपको 3 का टेबल मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द नेस्टेड लूप. क्लियर है टू ऑल? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? क्लियर है राइट यहाँ तक? ओके ओके, सो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप अगर कुछ डाउट है, नहीं समझाए, सो आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, अगेन, सो वी हैव वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दिस. ठीक है, फाइंड आउट whether given number is a prime or not. okay, this is first problem statement. आपको यूजर थ्रू वैल्यू देना है, तो सिस्टम सबसे पहले पूछेगा प्लीज एंटर योर नंबर. सो मैंने वहाँ पे नंबर दिया, लेट्स से 15. तो 15 देने के बाद वो सबसे पहले रिजल्ट हमें देगा, कि उसके बाद वो हमें रिजल्ट देगा कि इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट. सेकेंड, find out Fibonacci series of given number. ओके, तो सबसे पहले आपको एक इनपुट में नंबर देना है. सो इट विल, द प्रोग्राम विल आस्क यू फॉर वन नंबर, प्लीज एंटर योर नंबर. तो वहाँ पे मैंने नंबर देना है, लेट्स से 5. तो उस 5 नंबर के लिए आपकी एक फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगी. ओके, तो ये प्राइम नंबर और फिबोनाची सीरीज का आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है. क्लियर है? Okay, sir.